Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the topic for the day. Today is 10th of February. The first topic is Center to clarify on e-com FDI rules. Second important topic, aircraft enters orbit into Mars. So the Arabian aircraft which has recently been entered to the Mars orbit. The third is India-US talk for the democratic institutions. So India and United States is looking forward to strengthen some of the democratic institutions. Fourth, WHO virus investigation report. And the last is an editorial that talks about parliament responsibility in passing the bills. So these are some of the important article and news that has been reported in today's newspaper. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this session that can help you in upcoming prelims examination. So without any further ado, let's get started with the first topic. The title is Center to Clarify E-com FDI Rules. So how this news is going to help you. This is important for your general studies paper 3 in Indian economy section. And government is coming up with a stringent rule because there have been adversities and malpractices that has seen in the online platform. So let's see what is the news. So central government is likely to introduce a new foreign direct investment rule for e-commerce for all the e-commerce partners and enterprises companies to check the entities to set up the online marketplace from trading their own platform. तो कई बार ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो एंटिटीज है वो अपने ही प्लेटफॉर्म से ट्रेड करते हैं और एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए, राइट? Now, this is something which is considered to be the malpractices, and government would issue a clarification on the foreign direct investment policies, जहाँ पे e-commerce की जो सेक्टर है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा in some foreign players operators following the complaint about the malpractices. So this is something एक illegal तरीके से foreign direct investment को इंडिया में या फिर अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह की malpractices ऑब्जर्व की गई है. Now, what is the complaints of the malpractices? So, government has sought कि जो informations है from online marketplace as a part of proof into certain complaints from the consumer and small retailers. तो जो छोटे retailers थे या फिर जो small retailers है जो online presence हैं जिनकी e-commerce companies के साथ उन्होंने ये complain किया कि बड़े जो players हैं वो क्या कर रहे हैं अपने ही कंपनी अपनी साइट पे खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग दिखा करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा परमिशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट से. Now, government said that the e-commerce platform can only act as a service provider. They said कि जितने भी e-commerce platform है उनका मेन काम है सर्विस प्रोवाइडर का. आप कुछ बड़े e-commerce के प्लेटफॉर्म अगर ले ले लाइक Amazon है, Flipkart है, इस तरह के जितने भी बड़े ऑपरेटर्स हैं they are mostly providing the services, right? So they should be surely concerned with the act that relate to the service provider. And platform can only act as a service provider, not as a part of trade. So they cannot practice a trade. They should only provide services. For services we are paying, right? A trade cannot be established in business to consumer. P2C में जहाँ पे बात करें, so वहाँ पे इस तरह की चीजें allowed नहीं है. Now, what are the concerns that government have raised? They are considering certain clarifications to issues that e-commerce sector would work under the tourist spirit of law. और जो रूल्स है दैट वुड बी लेड डाउन. गवर्नमेंट अभी उसको जो रेक्टिफिकेशंस हैं उसमें या जो भी अमेंडमेंट है उनके साथ एफडीआई पॉलिसी को लेकर के आएगी कि जो इस तरह के जो ट्रेडिंग है जो इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको आप कह सकते हैं उनको रोका जा सके. Now, the platform should also become a part of trading transactions, and there should neither be the part of funding or having an algorithm that would give preference to one or other companies, right? So they would see कि किसी एक player को बहुत ज़्यादा dominance ना मिले market में. If you go by the Google search, you will find all the advertisement that is coming with Flipkart or Amazon. So इस तरह की algorithm बनाई जाएगी कि सबको एक transparent तरीके से transparent manner से all the partners would have equal participations और सब लोगों को opportunity हो अपने ई-कॉमर्स में ट्रेड करने के लिए या बेसिकली जो भी बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज ट्रेड इज अ वर्ड विच इज रिस्ट्रिक्टेड हियर, राइट? सो दे कैन बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. Now, the buyers and the sellers should be given an opportunity to trade with each others. अगर कोई दो कंपनीज ट्रेड करना चाहती है, so they will be more than welcome to do the trade. This would be called as B2B, right? तो बिजनेस टू बिजनेस होगी. लेकिन अब बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करें, so B2C में इस तरह की चीजें अलाउ नहीं होगी. Now, the other news from Indian Express.
Arab spacecraft enter into the orbit around the Mars. So this is important for your general studies paper 3 in science and technology portion. And again, this type of question is very much important for the prelims examination. A question can be directly asked about this aircraft which has entered. So recently the spacecraft from the United Arab Emirates, they have just swung into the Mars orbit. और ये एक बहुत ही ट्रायम्फ मोमेंट है अरब कंट्री के लिए, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरप्लानिटरी मिशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एंड दे हैव अचीव्ड सक्सेस इन इट. तो व्हाट इज स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करें, जो पूरी स्पेस क्राफ्ट है उसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं, सो दिस इज एन अनमैन्ड क्राफ्ट नोन एज अमल. अमल का मतलब अगर आप अरेबिक में समझो तो इज लाइक अरेबिक फॉर होप. This reached into nearly 7 months. पूरे it takes around 7 months. The total duration which it traveled was 7 months. So the duration time is completely for 7 months. Now the craft will travel almost 300 million miles a journey. It has almost traveled this much journey, and it will gather the detail about the Mars atmosphere. तो Mars की जो important credentials हैं या कि जो जानकारी हैं उन सारे चीज़ों को ये जो अमल है, ये एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट गैदर करेगी और वहाँ की जो यूए की स्पेस एयरक्राफ्ट एजेंसीज हैं उनको सारी चीज़ें रिपोर्ट करेगी, राइट. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द माइलस्टोन दैट बीइंग अचीव्ड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. So this is the image which is being officially released by the UAE Space Agency. You can see this spacecraft which is going to the Mars. Now, 2 more unarmed spacecraft from United States and China are following close behind. 2 और ऐसे countries है जो कि already इसको follow up कर रहे हैं and set to arrive Mars over next few years. India has also aligned. We'll be very soon launching another initiative in this context only. Now, all 3 missions were launched in July to take advantages of close alignment from Earth and Mars, right? So ये कुछ important countries हैं जिन्होंने participate किया. US, China, India, UAE, even Japan is also the part of it. Now coming to the other news, this is India-US talk for the democratic institutions. This is important for your general studies paper 2, where bilateral, regional and global grouping agreements are concerned. So as the US president, the new US president, that is Joe Biden, he has taken the charge. Now is looking forward to improve all the multilateral platform, and in light of that, he has discussed the democratic institutions with Prime Minister of India. उन्होंने ये सारी चीज़ें जो व्हाइट हाउस की रीड आउट जिसे कहते हैं उन दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई थी और ये बात की गई है कि जितने भी ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक ट्रेड हैं उनमें ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी भी एक कंट्री की डोमिनेंस ना हो. सब पार्टनर्स जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो बेनिफिशियरीज कंट्री हैं सबको मौका मिलना चाहिए ट्रेड करने का. And as we know, there is a dominance of China in this particular region. So US is also concerned. US want कि एक healthy relationship establish की जाए चाइना के साथ भी और जो इंडो पैसिफिक की जो ओपन ट्रेड है वो सारे कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिले. So the US president has also noted जो shared commitment है to the democratic value is a bedrock for India and US relationship. और अगर इंडिया के साथ बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी वहाँ के वो प्रेसिडेंट से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो हैड अ गुड रिलेशन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज अ फॉर्चुनेट फॉर इंडिया दैट द वाइस प्रेसिडेंट विच इज़ देयर सी इज ऑल्सो बिलोंग टू सी इज एन इंडियन ऑरिजिन. और इंडिया के साथ वैसे भी यूएस के रिलेशनशिप अच्छी रही है, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट वी वॉन्ट टू गेट सम एडवांटेजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. So the leaders agreed and state that in close touch in range of global challenges forward looking to the United States, and India will achieve the target for their people and for their nations. So मैंने आपको जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया, कमला हैरिस, शी इज़ एन इंडियन ऑरिजिन, तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है, यूएस के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए. Now on the Indo-Pacific, basically as we know, Indo-Pacific is one of the important segment of trade. तो जो व्हाइट हाउस की रीड आउट थी उन्होंने दोनों लीडर्स ने मेंशन किया कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना. एज वी नो चाइना की डोमिनेंस उस रीजन पे काफ़ी ज़्यादा है, एंड इवन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज़ देयर इन ईस्टर्न लद्दाख दे हैव टू बी टेकन पाइवोटल फॉर इंडिया. और इंडिया ने खास करके जितने भी बायलैटरल फोरम है उनमें ये बातें को भी रखा है. नाउ स्ट्रेंथनिंग द क्वाड, अगर बात करें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, सो क्वाड को बूस्ट करना भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है. और इंडिया ने खुद क्वाड को भी, इसके जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनका सिग्नेटरी है. और ये अभी रिसेंट में जो अभी बायलैटरल समिट हुई थी, क्वाड की जो एग्रीमेंट्स हुई थी उसमें भी इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, राइट. सो मेक श्योर आप क्वाड को पूरी तरह से देख लें बिकॉज द प्रीलिम्स क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड
और क्वाड्स के जो मेंबर कंट्री है, 4 कंट्री है, दैट इज इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स परस्पेक्टिव. नाउ कमिंग टू द एरियाज कॉपरेशन, जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से एरियाज पे बेसिकली बात हुई है. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पे वो दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे. दीज इंक्लूड टू विन द फाइट अगेंस्ट द COVID-19 pandemic, renew their partnership on climate change, because after the joining the Paris Agreement, which were being rejected by the US president, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को एक तरह से मना कर दिया था. ही वुड बी नो मोर सिग्नेटरी टू दैट, बट द न्यू प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज कंप्लीटली साइन दिस एग्रीमेंट एंड ही अडहर्ड टू द जो पेरिस एग्रीमेंट के जो क्लॉजेज हैं, जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, वो सारी चीज़ को अडहर करेंगे. तो रिन्यू करना, पार्टनरशिप और क्लाइमेट चेंज को वापस सस्टेनेबल तरीके से ध्यान रखना, ये एजेंडा है इन एरिया ऑफ कॉपरेशंस. Now, rebuilding the global economy in the way that can benefits the people across both the countries and stand together towards the surge of the global terrorism. So, India has been victim of terrorism from Pakistan and other countries. तो ग्लोबल टेररिज्म जो है, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, ये एक एरिया ऑफ कॉपरेशन में इसको भी डिस्कस की गई है. Now, the leader have agreed to continue the close cooperations to promote free and open Indo-Pacific, including the support the freedom of navigation. This would include in the South China Sea, in the Indo-Pacific region, territorial integrity को बरकरार रखना. This would be there in the line of actual control. If you're talking about the territorial integrity, ये इंडिया के कंसर्न में line of actual control में ज़्यादा important है. And a stronger architecture through the Quad. I have told you about the Quad countries, तो Quad के बारे में भी आप देख लें. Now coming to the other news, that is a WHO virus investigation report. A team was being formed by the WHO, World Health Organization, जिनको ये टास्क दी गई थी कि आप ये चेक करें कि जो वायरस की एक्चुअल इंसेप्शन हुई है वो किस जगह से हुई है, और उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट को फाइनल उनको WHO को सबमिट करना था. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, वेयर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर कंसर्न. अ क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड विद रिगार्ड्स टू WHO और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WHO ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो कि एक्सपर्ट कमिटी ने सबमिट की है, उनके मुताबिक जो ओरिजिन थी कोरोना वायरस की, दैट वाज अनलाइकली फ्रॉम एन लेबोरेटरी इन द वुहान. सो दिस वाज अ प्रेडिक्शंस दैट पीपल वेर एंटिसिपेटिंग कि जो वायरस है that has origin from a laboratory, but this has completely been ruled out by the WHO health expert. तो टीम ने कंक्लूड किया कि there is no indication of SARS-CoV-2 that is spreading across the population from December 2019. और जो वुहान के हॉस्पिटल में फर्स्ट केस रिपोर्ट की गई थी, that was the reporting of pneumonia outbreak. सो अथॉरिटीज़ जो थे, इन्होंने मिलकर काम किया. जो चाइनीज़ के भी हेल्थ एक्सपर्ट थे और जो WHO के हेल्थ एक्सपर्ट थे, उनको ये दे हैव फर्स्ट टाइम कंफर्म कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है दैट हैज़ टुक प्लेस इन मिड जनवरी. एंड एज यू नो कि चाइना ने जितने भी WHO के एक्सपर्ट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको क्वारंटीन किया था फॉर 15 डेज, राइट. सो आई पर्सनली फील कि चाइना ने कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश की है WHO पे, बट एज अ ग्लोबली अगर बात करें तो ये इम्पार्शियल रिपोर्ट देना WHO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. अगर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें लीक हुई तो WHO की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगी. सो फॉर टाइम बीइंग we are considering that this report is impartial and completely transparent in manner. So a team of 17 international experts and 70 Chinese scientists have spent past 2 weeks over visiting the places, hospital, seafood market, जो wet market है वहाँ की, वहाँ पे भी उन्होंने visit किया. और ये अर्लियर जो laboratories में जो वहाँ की बात की गई थी, इन सारे predictions को, इन सारे assumptions को rule out किया है. Now coming to the 4 possibilities, तो कमेटी ने कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज बताई थी जो टीम ने एग्जामिन्स किए. उनमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ. सेकेंड इज ट्रांसमिशन थ्रू द इंटरमीडिएट होस्ट. जो इंटरमीडिएट होस्ट है उनको इफेक्ट की जाएगी, उनसे इफेक्ट हुई होगी. एंड ट्रांसमिशन वाया द कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स. सो जितने भी कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स में नॉनवेज आइटम्स हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है. एंड इवन द लास्ट एजम्पशन वाज द लेबोरेटरी लीक, बट दिस हैज बीन रूल आउट फ्रॉम द वुहान वीरोलॉजी सेंटर्स, जिनके बारे में पॉसिबिलिटी लगाई गई थी.
Now, other findings of the report. Reports from the Wuhan said that the team spent around an hour at the market and 4 hours at the Wuhan Institute of Virology to meet the scientists, including the China leading bat coronavirus experts. तो उन्होंने जो बैट के एक्सपर्ट्स हैं क्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट्स के, उनसे भी बात की, उनसे भी पूछा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वायरस की आउटब्रेक की. सो देयर इज नो एविडेंस दैट SARS-CoV-2 वाज बीइंग स्टडीड एट एनी पॉइंट ऑफ लेबोरेटरीज इन द सिटीज ऑफ वुहान. Now the report also said there was no evidence to suggest कि जो Hunan market है वहाँ पे वुहान में, that is also known as wet market, has the earliest case of Wuhan in 8 December 2019 and was not likely to link with this market. So these are some of the finding that at the prima facie seems that कि वहाँ पे नहीं हुई होगी. अब ये सारी रिपोर्ट WHO को टेबल करेंगे ये एक्सपर्ट. उसके बाद WHO एक क्लैरिफिकेशन, एक जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो अपने ऑफिशियल साइट पे पब्लिश करेगी. वंस दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एंड दिस इज देयर इन द न्यूज, we will consider that news and we'll discuss that also. For time being, this is the news that has been reported. Now coming to the other news, that is Parliament responsibility in passing the bill. This is an editorial which has been reported in Indian Express, and this is very good editorial which can be important for your general studies paper 4 as well in the ethics paper, and it is written by the head of PRS Legislative Research Audit, that is Chusko Roy. So what is there? No, this is important for your general studies paper 2, Parliament, their state privileges, structure, functioning, business, everything. So किस तरह से जो बिल्स हैं उसमें पार्लियामेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिफोर इट इज़ बीइंग पास्ड, राइट. तो इस तरह के एडिटोरियल काफ़ी कम आते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझें और अगर क्वेश्चन आए तो इसके फोल्डर पॉइंट वहाँ पे यूज़ ज़रूर करें. Now the Supreme Court has ordered keep on keeping the farms law. जो farms law है उसको अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, and the separation of this has the legislation and judiciary implications. तो इसके अपने judiciary और legislative implications भी हैं. So let's see, since 2019 the constitutionality of the status being passed by the parliament has been questions. तो जितने भी अभी रिसेंट में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं उसको लेकर के उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे या फिर जो पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे गए हैं. सो दिस इज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन द, जो रिसेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुई थी कोरोना वायरस से पहले उसके लिए, और जो फार्म बिल पास हुई है वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रूल किया है और ये कहा है कि इस तरह के बिल को अभी स्टॉप करने की ज़रूरत है. Now the highest lawmaking body should be asking itself whether it is rigorously scrutinizing the constitutionality of the bills, whether the parliament is taking all its consideration before a bill is being passed. क्या पार्लियामेंट उसको इतने अच्छे से कंसिडर कर रहा है कि बाद में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे कंसल्टेशन पहले क्यों नहीं की जा रही है और उस बिल को ऑर्डिनेंस के थ्रू या किसी और मोड के थ्रू पास किया जा रहा है, लाइक वॉइस वोट, जो कि हमने एग्रीकल्चर बिल में भी, फार्म बिल्स में भी देखे थे. नाउ मैकेनिज्म फॉर एग्जामिनिंग द बिल, यहाँ पे इस एडिटोरियल में बात की गई है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए बिल को एग्जामिन करने के लिए, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उस पर आधार रहने के लिए, ताकि जो भी बिल बने वो मास पॉपुलेशन को बेनिफिट करे. सो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन अपोज द इंट्रोडक्शंस ऑफ बिल. इसमें कुछ प्रोविजंस भी रखे गए हैं, कुछ मैकेनिज्म रखे गए हैं पार्लियामेंट प्रोसीजर्स में, जहाँ पे हर एक मेंबर के पास ये पावर होती है कि वो बिल को अपोज कर सकते हैं, कुछ बिल में चाहे तो इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं चेयरमैन को. नाउ देयर इज अ लिमिटेड डिबेट. आजकल देखा ये गया कि कुछ भी जो ऐसे बिल पास हो रहे हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड डिबेट हो रही है, एंड इवन विच द बिल इज गेटिंग इंट्रोड्यूस इट डज नॉट डिवेल्व इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटीज. जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, जो पार्लियामेंट प्रोसीजर्स है, जो कन्वेक्शंस हैं, उन सारी चीज़ों को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है. सो अ बिल विथ रिगार्ड्स टू द फॉर्म लॉ, आपने देखा होगा वो किस तरह से वॉइस वोट से की गई, उसमें मोशन की मांग की गई थी. इवन वॉइस वोट की जगह वहाँ पे कहा गया था कि आप वोटिंग ले, प्रॉपर वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले और तब उस बिल को पास करें, बट राज्यसभा के जो चेयरमैन थे उन्होंने इसको मना कर दिया. सो दीज टाइप्स ऑफ जो नोशंस हैं या फिर इस तरह के जो कंडक्ट है, दैट इज़ नॉट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको नकारा जाना चाहिए और जो मास पॉपुलेशन है उनके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए. सो MPs have also get an opportunity to discuss the bill in the constitutionality and debating the Lok Sabha and Rajya Sabha. So the member of parliament have equally privileged that they have the right, they can ask question, they can debate upon any bill. But seeing the present context, Supreme Court को बहुत ज़्यादा
इंटरवीन करनी पड़ रही है किसी भी बिल को पास होने के बाद, तो वाई नॉट वी शुड टेकिंग अ क्वेश्चन एंड मेक बिल एनी कंट्रोवर्सी उससे पहले ही प्री कंसल्टेशन हो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं इस एडिटोरियल में। सो लैक ऑफ रोबोट स्क्रूटनी, दैट इज द main weaknesses of the highest legislative institution that encourage judicial encroachment into this power. So this is a very authentic word which you can use in the prelims examination. Judicial encroachment हो रही है, जबरदस्ती जुडिशरी को घुसना पड़ रहा है उस बिल में, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस सोल प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट की और जुडिशरी वहां पर इंटरवीन नहीं करती है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट जिस तरह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, जुडिशरी हैज टू इंटरवीन, राइट। सो द रियल अपॉर्चुनिटी इज विद द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द बिल, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है या फिर उनको एग्जामिन करने के लिए दिया जाए, क्यों नहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, या हमने हर मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनके पास आप रिपोर्ट भेजें, उनके रिकमेंडेशंस पूछें। नहीं तो फिर आप ओपन जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो ले सकते हैं, पब्लिक व्यू ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलोअप की जानी चाहिए बिफोर एनी ऑर्डिनेंस और एनी बिल कम इनटू द लॉ और इनटू द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो लैंड एक्विजिशन बिल के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी। देन अगेन द सेम प्रॉब्लम हैज अराइजन विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और रिसेंट में खास करके जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुई थी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बारे में भी कहा था कि ये चीज़ें वॉयलेट होती है इस बिल से। और रिसेंट में फार्म बिल जिसको लेकर के फार्मर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे कंसीडर दैट दिस बिल इज नॉट इन द फेवर ऑफ देम एंड दे वांट कंप्लीट रिपीलमेंट ऑफ दिस बिल। सो लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल दिस, बिकॉज दिस इज अ टाइम and this bill pertains to the favorable, and this bill basically is important for more mass people, right। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर जो छोटे एग्रीकल्चर्स हैं, उनके लिए ये बिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो गवर्नमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको कंसिडर करना होगा। Now, way forward, before passing the legislation baton, Parliament and the government should put an impetus that they should be taking all vigils और interministerial consultation की अगर जरूरत पड़े तो वो भी की जा सकती है। Now, this is the responsibility of the legislature to satisfy the legislature before it is getting constitutionally। और जो law जब भी बनती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की भी एसेंट होती है, तो एक चेक एंड बैलेंसेस रखी गई है। बट जिस तरह से 3-4 बिल जल्दी में पास किए गए इंडिया में, वो इंडिया की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है। सो लैक ऑफ रोबोस्ट स्क्रूटनी प्रोसेसेस वीकन द इमेज ऑफ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। सो टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट, the highest law making body in इंडिया में पार्लियामेंट है, एंड दैट इनकरेज द जुडिशियल इंक्रोचमेंट एंड इट्स पावर। सो ओवरऑल अगर बात करें, लॉ मेकिंग शुड नॉट बी इन मैकेनिकल स्टैंपिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करना चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है उनके रिकमेंडेशंस लेने चाहिए, ताकि सारी चीज़ों को फुल एंड फाइनल करके इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड दैट हैव बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल और इन दिस एडिटोरियल। Now, coming to the MCQs question of the day, the first question is from current affairs. As you know that we have started the current affairs questions. So the first question is with regards to the operation of green scheme. You have to consider which among the following statement is correct. So it was announced by the government in the Union Budget 2021, and it aims to promote the farm productions organization, agriculture, logistics. It facilitates professional management of agri-produce. So what is this? You have to just let me know the correct options, whether it is A is correct, B is correct, C is correct, or D is correct. You can write A, B, C, D as a correct option. If you know any additional information about the Operation Green Scheme, that also you can share with us. Second question is with regards to the National Infrastructure Pipeline. Consider the following statement. NIP includes economic and social infrastructure project. It also includes both greenfield and brownfield projects. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अपने जो करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शंस के थ्रू ज़रूर बताएं। सो डू पार्टिसिपेट, राइट योर आंसर देयर। And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Aptplus Academy for Civil Services for more important videos. And if you like this video, do not forget to give it a thumbs up. If you have any other concern, you can let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.